جی ہماری سسٹر ہنا صدف نے بتایا کہ حافظ اللسان زبان کا کنارہ ہوتا ہے. کوئی اور اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے کہ حافظ اللسان کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتانا چاہتا ہے کہ حافظ اللسان کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی نہیں؟ زبان کے جو سائڈز ہوتے ہیں، زبان کے جو سائڈز ہوتے ہیں وہ حافظ اللسان ہوتے ہیں. کتنے طرح کے حافظہ ہیں؟ ادنی حافہ ہے اور ادنا حافہ، منتا حافہ، اقصا حافہ. اوکے گڈ، تین. ویری گڈ. اقصی حافظ سے کیا نکلتا ہے؟ قاف، قاف اور کاف شاید. قاف و یہ کاف. قاف اور کاف حافظ سے نکلتے ہیں؟ نہیں، حافہ سے زبان نہیں، کی جڑ وہاں سے. سے قاد، نہیں وہاں سے نہیں، قاد نکلتا غلط. ہے جب وہ وہ قاد. جواب غلط ہے. اس کا مطلب ہے کہ حافظ زبان میں ہوتا ہے یا نہیں زبان کے سائڈ. سوری زبان کا کنارہ ہوگا، زبان کی سائڈس پر آؤٹ لائن ہوتے ہیں ہوتی ہے دونوں پوری، اس کو sides. کہتے ہیں. جی 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 کس نے کہا، کیا جواب دیا؟ عدیلہ نوشین، میں نے یہ کہا کہ آؤٹ لائن جو ہوتی ہے زبان کی اس کو حافہ کہتے ہیں. ایکسلنٹ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، اس کو حافظہ کہتے ہیں. اور لام کون سے حافظہ سے نکلتا ہے؟ ادنا حافہ، منتا حافہ کا جتنا پارٹ ہوتا ہے طرف اللسان. اوکے ویری گڈ. اگر میں یہ کہوں ہماری ایک سسٹر نے کہا کہ ادنا حافظہ، اقصی حافظہ. اوکے ایک منٹ جی کنیز کیا کہہ رہی تھیں آپ؟ جی میں یہی بتائی تھی. آپ نے حافہ پوچھتا ہے کتنے زبان کے مطلب وہ سائڈس جو ہوتے ہیں. اقصا حافہ، ادنا حافہ، منتا حافہ. اوکے. اور سسٹر ادینہ نوشین نے ہمیں بتایا کہ حافظ جو ہے وہ زبان کی باؤنڈری ہوتی ہے. صحیح. جی اب مجھے یہ بتائیے کہ باؤنڈری کے بیچ میں کیا ہے؟ یہ آپ کی باؤنڈری ہے. یہ آپ لوگوں کو الحمدللہ سمجھ میں آ گیا. یہ کیا ہے؟ باؤنڈری ہے. اب اس باؤنڈری کے اندر کیا ہے؟ زبان ہے، لسان. لسان ہے. کتنی طرح کی؟ تین طرح کی تین طرح کیلکولیشن کی. توسل. ایک قسم کی. ایک آپ کے پاس راس یہ جزر اللسان. اللسان ہے. اس جزر اللسان کو چھوڑتے ہیں ابھی یہاں سے آتے ہیں اقصی لسان. ٹھیک ہے. لسان ہماری بہن اکثر لسان کو اکثر حافہ کے ساتھ ملا کے کہنے لگی تھی کہ یہاں سے قاف اور کاف ادا ہوتی ہے. یہی بات تھی نا تمیز؟ یس مس. ٹھیک ہے. تو حافہ کی یعنی زبان کے کنارے کی اقصا الگ چیز ہے اور زبان کے اقصا کی بات الگ ہے. اقصی لسان زبان کے درمیان میں ہے، زبان کے بیچوں بیچ ہے، کنارے پہ نہیں ہے. یہ جو گرین ایریا ہے یہ اقصی لسان ہے. ٹھیک ہے. اور اقصی حافہ سے ضاد ادا ہوتا ہے اور ادنا حافہ سے لے کر منتہا حافہ تک آپ کا لام ادا ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ لام صرف اور صرف کس سے ادا ہو رہا ہے؟ طرف اللسان. ادنا حافہ سے منتہا حافہ. نہیں طرف اللسان نہیں آ رہا نا، ادنا حافہ منتا حافہ. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے؟ طرف اللسان پہ ہوتا
पूरी वो जबान आगे की लगेगी। कैमरा ऑफ रखें सिस्टर शाजिया परवीन जी। कोई और ये जिन बहनों ने अभी तक जवाब दिया इसके अलावा कोई जवाब देना पसंद करेगा कि लाम के लिए हमारे पास क्या चीज लग रही है? सिस्टर शाजिया परवीन अपना कैमरा बंद करें। लाम के लिए जो पूरा जो तरफ मुंतहल हाफा और अदना हाफा का जो जबान का जो उसके अगेंस्ट में जो जबान का पोर्शन है किनारा पूरा का पूरा सब दांतों की जड़ों से लग रहा है। ओके आपने बोला है दांत की जड़ से लग रहा है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं। आपने बोला है दांत की जड़ से निकल रहा है, ओके, ये तो अलग बात है, ये तो अलग ही चीज है क्योंकि ये हमें भी नजर नहीं आ रही दांत की जड़, हम तो अभी जबान पे ही है। तो जबान पे अभी हमने पढ़ा है, सामने लिखा हुआ है, लाम कहाँ से अदा हो रहा है? लाम जब तरफान लगेगी अदना हाफा और मुंतहा हाफा से। एक्सीलेंट। अदना हाफा और मुंतहा हाफा को कहाँ नजर आ रही है इस वक्त, किस पोर्शन से नजर आ रही है? तरफुल लिसान और रासुल लिसान। तरफुल लिसान का लफ्ज यहाँ पे नहीं इस्तेमाल करना, ठीक है। यहाँ पे जो बार बार 3 मरतबा 4 मरतबा मुसलसल जब से हमने लेसन शुरू किया हम लाम पढ़ रहे हैं, उसका मकसद ये है कि एक बात हमारे जहन में ये खुल के बैठ जाए कि जब हम लाम का जिक्र कर रहे हैं तो हम लाम में तर्फ का लफ्ज छोड़ दें, ठीक है, तर्फ का लफ्ज छोड़ दें क्योंकि हम तर्फ जिन जगह इस्तेमाल करेंगे वही इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हमें क्या याद करना है कि हम लाम को हाफिया में यानी हाफतुल लिसान से निकालेंगे। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ जबान की ये जो ग्रीन एरिया है, जो इतना ग्रीन पोर्शन में कलर कर रही हूँ, इसी से हमने लाम को निकालना है, इतना ही पोर्शन हमने लाम के लिए लगाना है, ठीक है। आप जानते हैं कि लाम जो है जलकिया में आता है, लाम कौन से लेटर्स में आता है? जलकिया में, यानी इसमें कौन सी सिफात मौजूद होती है? इजलाक मौजूद होती है। इसका क्या मतलब होता है? वो लेटर्स जो मुंह से जल्दी से निकल जाने वाले होते हैं, जो होठों के करीब होते हैं। फर्रा मिन लुबिन, फा रा मीम नून लाम और बा। तो लाम होठों से फौरन अदा हो जाने वाला लेटर है, वो सिर्फ और सिर्फ अदना हाफा से अदा होता है। इसके लिए हम, वो एक अलग बात है, अगर मैं इसकी ड्राइंग यूं करूं, जैसे हमारी बहन चाहती है कि हम तर्फ का लफ्ज इस्तेमाल करें, अगर आप तर्फ का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहती है तो उसका तरीका यह है कि आप यूं कहें कि मैं आपके लिए तर्फ बना रही हूँ, मैं आपके लिए क्या बना रही हूँ? तर्फ। ये सारी जबान की नोक है। तर्फ का मतलब क्या है? जबान की नोक, इंग्लिश में टिप ऑफ द टंग हम तरफुल लिसान के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप ये कहती हैं कि ये सारी की सारी तरफुल लिसान है, तो तरफुल लिसान के ऊपर आप देखेंगे कि हम इसके किनारे भी बताएंगे कि इसके किनारे क्या है। तो तरफुल लिसान का किनारा क्या बना? ये आपका हाफतुल लिसान बना। यानी हाफा क्या है? ये किनारे हैं। हाफा क्या है? ये साइड्स हैं, ये साइड्स हैं। तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? हाफा नजर आ रही है ना जी, क्या नजर आ रही है? हाफा नजर हाफा आ रही नजर है। आ ये रही है। किनारे, ये हाफा है। इसको अब हम तरफ नहीं बोलेंगे क्योंकि अब इसके ऊपर एक, जैसे आप लोगों ने एक छोटी सी वीडियो बना के समझाने की कोशिश की थी कि रोड के साइड पर फुटपाथ बना दिया जाता है ताकि गाड़ियों के बजाय लोगों के चलने के लिए भी कोई जगह हो। या इसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया कि जबान थी पूरी, लेकिन इसकी जो किनारे हैं उनका नाम क्या दिया गया? हाफा, साइड्स। इस अदना हाफा से लाम अदा होगी। अब हम ये थोड़ी सी ये चीज सीख लेते हैं कि जैसे ये जबान हमें समझ नहीं आ रही थी, मुमकिन है कि हमें इसका अलहनकुल आला, यानी हनकुल आला किसको कहते हैं जी? हनकुल आला से क्या नजर आ रहा है, क्या फील हो रहा है कि क्या, किसको कहते होंगे? मुंह की छत या तालू कह सकते दांत, हलक की छत। इसको आप क्या कह सकते हैं? मुंह की छत
या Palate. दांतों की जड़, या रूफ ऑफ द माउथ, या अपर पैलेट, या अपर जॉ। आप इसको एक सेकंड, ये पेज खुल रहा है। ओके, जब तक पेज खुल रहा है ओके, मैं से पढ़ लेते हैं, बाद में आप लोगों से पिक्चर में शेयर कर लूंगी। ओके, अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि आपका ये हनकुल आला दरअसल क्या है, आपका मुंह की छत, या रूफ ऑफ द माउथ, या अपर पैलेट, या अपर जॉ। अब ये सब कुछ यानी बेसिकली क्या है, ये रूफ ऑफ द माउथ है, इसको हनकुल आला कहते हैं, या गार भी कहा जाता है। अब इसमें हमें चीजें देखेंगे कि इसमें ये पॉइंट जो आपको नजर आ रहा है, जो दांतों के फौरन बाद है, इसको क्या कहा जाएगा? जिसको अब मैं ग्रीन कर रही हूँ, ये क्या चीज है? اللثة. मसूड़े, लिसा। इसको लिसा। अरबी में लिसा कहते हैं, उर्दू में क्या कहेंगे? मसूड़े, मसूड़े। मसूड़े। ठीक है। अब मेरे ख्याल से जितनी सारी बहनें थी जो शुरू से मसूड़े जड़ कहती थी, और मैं कहती थी कहाँ होते हैं मसूड़े और कहाँ होती है जड़, तो अब मुझे बताइए कि इसको तो एक चीज तो फाइनल हो गई कि मसूड़े यहाँ होते हैं। अब वो सारी बहनें जो मुझे जड़ की कहानी सुनाती थी, अब वो मुझे बताएं कि वो जड़ कहाँ है। बिल्कुल दांतों के साथ। बिल्कुल दांतों के साथ। अच्छा जी, दांत और गम्स के दरमियान। लिसा के बाद। ओके, मसूड़ों के बाद का जो हिस्सा है वो आपके जड़ है, ये आपकी जड़ है, आपकी नहीं, दांतों की जड़। इन प्लीज जड़ ये को क्या कहेंगे? दोबारा रिपीट कर दें, दोबारा प्लीज, मुझसे मिस हो गया। देखिए, दांतों के फौरन बाद का जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं? अरबी में लिसा। लिसा कहते हैं, और लिसा। उर्दू में मसूड़े कहते हैं, और इंग्लिश में आप इसको गम्स कहते हैं। ठीक है। इस मसूड़ों के बाद वाला जो हिस्सा है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जड़। क्या इस्तेमाल होता है? जड़। जड़। ठीक है। और इसको अरबी में क्या कहेंगे? मोतिया, लिसिया। क्या? असूल। इसको असूल कहेंगे, और इसके लिए पैलेटाइन का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है इंग्लिश में। अच्छा जी, तो अब आप लोगों को ये बात याद रहेगी कि हमने क्या चीज सीखी, कि लिसा के करीब अगर हम जबान को लेकर आए तो लिसा के करीब जबान की कौन सा पोर्शन इजीली आएगा, तो उसकी अपोजिट कौन सी चीज होगी जबान के? लिसा के अपोजिट जबान का कौन सा हिस्सा हो? हाफतुल लिसान, अदना हाफा। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है। इसके अपोजिट हमारे पास जबान का किनारा आएगा जो कि अदना हाफा, या जो मुंतहल हाफा तक है, यहाँ से यहाँ तक जो हम जबान लगाएंगे इस ग्रीन एरिया पे, वो क्या होगी? अदना हाफा या मुंतहल हाफा तक वो पहुंचेगी। कौन से लेटर के लिए पहुंचेगी? लाम। लाम। लाम के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमें क्या पता चला कि लाम के लिए आपने याद रखना है कि लाम के लिए आपके जो दांत लगेंगे वो आपके पास कितने हैं? 8। 8 दांत। 8 दांत हैं। ठीक है। क्या 8 दांतों के 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8,
ان میں ہم نے کیا لگایا ہے؟ صرف اس لسا پہ ہم نے کیا چیز لگائی ہے؟ صرف ادنى اللسان. ادنا حافہ. کیا ہم نے طرف ادنى اللسان بھی حافة. لگائی ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے. اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر نون کا مخرج کدھر ہے. کوئی بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر نون اور را کا مخرج کہاں ہے؟ مس وہ جو دانت اور مسوڑے کے کافی لگتے ہیں نون کے لیے. وہی کا ہے، یعنی کہ نون جو ہے وہ دانتوں کی جو جڑ ہے، جہاں مسوڑے سے ختم، مسوڑے جہاں پر ہے یعنی کہ ختم ہو رہے دانت کی جڑ، وہاں پر نون کا مخرج. یہ مائک میوٹ کر لیں پلیز. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ من طرف اللسان. طرف کا کیا مطلب ہوا؟ جو بھی ہم نے پڑھا جب ہم نے پڑھا تھا کہ مڈل پارٹ جو طرف زبان کے اندر اللسان نوک اس کی زبان کا جو بیچ کا حصہ ہے وہ جو چل رہا ہے وہ حاف اور لسان سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تھی آپ کی حافہ اللسان جو بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ حافہ آپ کو نظر آ رہی ہے نا، جو میں گرین گرین سے بنا رہی ہوں. اور آپ کے پاس طرف اللسان میں نے کیا کہا تھا کہ اس کے درمیان میں جو ہے طرف اللسان. ٹھیک ہے. ہم نے لاسٹ والی کلاس میں ایک چیز اور بھی بیان کی تھی کہ جو طرف اللسان کا اینڈ ہوگا وہ کہاں پہ ہوگا؟ منتہا. وہ منتہا الحافہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو طرف اللسان ہے یہ کہاں تک پہنچ رہی ہے، یعنی یہ حافہ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا، یہ حافہ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یہ جو سارا پرپل سا ایریا بن گیا یہ کیا ہے؟ طرف اللسان ہے. طرف اللسان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پیچھے کیا دیکھا تھا، میں نے آپ کو یہ کر کے دکھایا تھا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ پوری کی پوری کیا ہے، یعنی پوری زبان کو اگر میں طرف اللسان بنا دوں اس طریقے سے، یہ پوری کی پوری کیا بن گئی تھی؟ طرف اللسان. اور اس کے اوپر میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس طرف اللسان کے اوپر اگر میں حافہ بناؤں تو کیسے بناؤں گی؟ سونا نہیں ہے، نماز پڑھو. نہیں سونے میں چپیڑے مارو گی اور تھپڑ ماروں گی. تاکہ جی کو ہوسٹ بنا دیں ہم میں سے کسی کو، تو ہم مائکس کو جزاک اللہ خیر. میں سمجھی کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی ہوسٹ بنا ہوا ہوگا. سوری. یہ کوئی میرے ہی نام سے آیا ہوا وہ کو ہوسٹ بن گیا. اور جی یہ میں ہوں، میں قرآن حیاتی کی آئی ڈی سے آئی تھی نا، میٹنگ سٹارٹ کی تھی اس لیے. اور میں نے بنا دیا آپ لوگوں کو ہوسٹ، اور بھی کوئی بنا دیں. 3 بہنوں کو ہوسٹ بنا دیا. اب آپ لوگ مینیج کر لیں اس چیز کو. اوکے. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ پرپل ایریا کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ حافۃ اللسان ہے. یہ اس کے اوپر کا کنارے جو ہم نے سائڈز بنائے ہیں وہ کیا ہیں؟ حافۃ اللسان. اب یہ انہوں نے لکھا ہے کہ من طرف اللسان مع ما یحاذیہ من اللثہ تحت مخرج اللام بقلیل. اس کو میں اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے لکھنے کی کوشش کرتی ہوں آپ لوگوں کے لیے کہ اس میں کیا لکھا گیا کہ زبان کی نوک، اوکے، زبان کی نوک کے ساتھ، مع کے ساتھ، ما یحاذیہ یعنی بالمقابل بالمقابل من لسا. لسا کیا تھے؟ لسا کس کو کہتے ہیں؟ مسوڑے. وہ کون سے مسوڑے؟ تحت مخرج اللام بقلیل. تحت کا مطلب نیچے. کس کے نیچے؟ مخرج اللام، لام کے مخرج کے
नीचे। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को नजर नहीं आ रहा होगा इसमें। तहता मखरज लाम यानी मखरज लाम के लाम के मखरज से छोटा है, कह लें। ठीक है, ये नजर आ रहा है तुमको? ठीक है, लाम के मखरज से, सीधा लिखती हूँ, लाम के मखरज से जरा नीचे या जरा छोटा आप कह लें या नीचे कह लें, नीचे। कहाँ से? इसके सामने वाले मसूड़े। तो मैंने मसूड़ों का जिक्र पहले कर ही दिया, ठीक है, तो दोबारा लिखने की इसकी जरूरत नहीं है। ये क्लियर हुई है बात, या मैं दोबारा बोलूं इसकी डेफिनेशन? जी हो गई क्लियर। ठीक है, मिन तरफिल लिसान यानी जबान की नोक, मा युहाज़िही जो इसके मुकाबिल है, किसमें से? मिनल लिफ्ता यानी मसूड़े में से, तहता मखरजुल लाम बिकलील मखरजुल लाम से थोड़ा छोटा या थोड़ा नीचे, कलील यानी कम। लाम का मखरज क्या था? ज्यादा बड़ा था, और नून का मखरज लाम के मखरज से थोड़ा छोटा होगा। वयुसाहिबुहा गुन्ना मिनल खैशूम, इसका क्या मतलब हुआ कि इसके साथ साथ क्या चीज निकलेगी? गुन्ना निकलेगी। गुन्ना कहाँ से निकलती है? अल-खशूम से, खैशूम से निकलती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर हमारी आवाज कहाँ चली जाती है? नाक में, नाक में। नाक में चली जाती है आधी आवाज। अभी जो बाकी चीजें लिखी हैं निस्फुल मुकम्मल, निस्फुल मुकम्मल, इसको सिंपल आसान जबान में यूं ही समझ लें। इसको समझने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। आसान लफ्जों में यही है कि मतलब ये कि इसका आधा हिस्सा निफ्स जो है वो जबान की कहाँ, यानी नून के मखरज का आधा हिस्सा जबान से अदा हो रहा है, और आधा जो है वो आपकी खैशूम से अदा होती है। यानी आधा आप जबान मखरज से जब लगती है तो जबान से अदा होती है, और इसका जो गुन्ना है वो कहाँ से अदा होता है? वो नाक से अदा होता है। तो नून से जो है बगैर गुन्ने के नहीं होती, बल्कि नून की आवाज गुन्ने के साथ शामिल है। नून का जो मखरज है वो सिर्फ जबान से नहीं अदा होता, बल्कि वो नाक से भी अदा होता है। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जब आप नून पढ़ते हैं और लाम पढ़ते हैं, खास तौर पे जब आप, हमने जो आज ये नून पढ़ा है उसका मकसद सिर्फ नून पढ़ना नहीं है, बल्कि हमारा आज भी मकसद लाम ही पढ़ना है। वो कैसे? वो इस तरीके से कि जब हम नून पढ़ने के बाद लाम पढ़ते हैं तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम नून का मखरज छोटा और लाम का मखरज बड़ा करें। वो कैसे होगा? वो कैसे होगा? लाम के लिए 8 दांत इस्तेमाल होते हैं, ऊपर 8 दांतों के वो लगती है जुबान। लाम के लिए ना? जी जी। और नून के लिए? नून के लिए 4 दांतों पे। चलिए, जितने आप सब हैं यहाँ पे बता दें कि नून के लिए कितने कितने दांत लगाएंगे? 6 लगेंगे। 6 और कोई? 6 पे सबका इत्तेफाक है। ये 2 वाला कौन है? मैं कौन? शाजिया गिलानी 2 कह रही हूँ। शाजिया गिलानी 2 कह रही हैं। ओके, और कोई? बस 2 ही लोगों को पता है? जी अभी तक तो 6 ही पढ़े हैं। 6 ही पढ़े। ओके, प्लीज माइक म्यूट कर लें जो जिनके पास पानी वानी जगह।
اچھا جی، تو بات یہ ہے کہ ہم بہت سی کتابوں میں یہ پڑھتے آئے ہیں کہ نون کا مخرج 6 دانتوں سے ہے. پلیز دیکھیے گا کسی کا بھی مائک کھلا ہوا نہ ہو، میری آواز مجھے ایکو کیا آ رہی ہے. ٹھیک، اچھا جی، ہم بہت سی کتابوں میں یہ پڑھتے آئے ہیں کہ مخرج جو ہے نون کا وہ انیاب تک ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں ہم لام کے لیے کیا کرتے ہیں، لام کے لیے ہم کہاں تک لگاتے ہیں، دواہک تک، 8 دانتوں تک ہم اپنی حافۃ اللسان کو لگاتے ہیں. اور اس کے بعد ہم پڑھتے آئے ہیں بہت سی کتابوں میں کہ جب ہم نون ادا کریں گے تو ہم کہاں سے ادا کریں گے، 6 دانتوں سے. ایسا ہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہم نے کہا کہ لام کے لیے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ لام ایک تو اس کی صفت ازلاق پائی جاتی ہے، دوسرا یہ اس کا لقب میں بھی اس کو حافیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی حافظ سے نکلنے والی. اور جبکہ نون اور را کو کیا کہتے ہیں، ان کا کیا لقب ہے؟ حروف زلکیہ، زلت سے نکلتے ہیں، یہ کناروں سے نکلتے ہیں. زلکیہ، طرف اللسان تھی. طرف اللسان. ابھی ہم پڑھ کے آئے ہیں اس کی ڈیفینیشن میں کیا لکھا ہوا تھا، زبان کے یعنی طرف من طرف اللسان. اب ہم تو اس کو زبان کی نوک بھی کہہ سکتے ہیں اردو میں، ہم اس کو زبان کے کنارے بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جب اردو میں ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم مختلف انداز سے کرتے ہیں، یعنی اس کی ڈیفینیشن تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. ہمارے نزدیک نوک کنارہ سب ایک ہی چیز ہے، اور اگر دیکھا جائے تو کوئی غلط ترجمہ بھی نہیں ہے. لیکن سمجھانے کی بات یہ ہے کہ جب ہم اس کو طرف کہتے ہیں، یعنی اس کا نام کیا ہے، من طرف اللسان، تو طرف سے کیا مراد ہے؟ نوک اس کی، کنارہ اس کا. منتہا جیسے کہتی ہیں آپ. ایکسلنٹ، منتہا. یعنی ہم دوبارہ زبان پہ آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ گرین پورشن ہے، ہم نے اس کو طرف اللسان کہا تھا. اور ایک اور چیز ہم نے کہی تھی کہ طرف اللسان میں جو اینڈ ہوگا طرف اللسان وہ کیا ہوگا، وہی منتہل حافہ ہوگا. تو یہ جو پورشن ہے وہ کیا ہے، ایک طریقے سے طرف اللسان بھی ہے اور منتہل حافہ بھی ہے، بے شک یہ راس اللسان بھی ہے. تو کہنے کا مقصد یہاں پہ یہ ہے کہ مختلف کتابوں کے باوجود جو چیز ابھی اس وقت مطابق دیکھی تو ہم نے صرف کیا دیکھا کہ نون کا مخرج لام کے مخرج سے، نون کا مخرج، نون کا جو مخرج ہے وہ لام سے چھوٹا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسی عربک بک میں نے یعنی کتاب المنیر جو بڑی بک ہے، یا یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، ہم اس میں اس چیز کا ذکر نہیں پایا کہ نون جو ہے وہ انیاب، رباعیات یا سرایا سے نکلتا ہے، یعنی ان 6 دانتوں سے نکلتا ہے. ان دانتوں کا ذکر نہیں پڑھا. ہاں البتہ آپ اگر مزید کتابوں کا پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ثنایا علیہ کا ذکر ہے کہ نون کا مخرج تب ادا ہوگا جب آپ طرف اللسان کو ثنایا علیہ کے لسا سے ادا کریں گے. اس کی عربک میں جو ایکسپلینیشن ہے اس کی ویڈیو میں بے شک آپ لوگوں کو بھیج دوں گی، اور یہی چیز جو ہے وہ الہدا کی بک میں لکھی ہے. اور قاری احمد سوید ہی کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے انگلش میں اس کی ٹرانسلیشن کی ہے وہ بھی اس کی وضاحت کرتے ہوئے اسی طریقے سے لکھتے ہیں کہ نون کا جو مخرج ہے وہ کیا ہے کہ زبان کی طرف، جو کہ یہ مڈل پورشن ہے، حافہ کا ذکر نہیں ہے کیونکہ حافہ زیادہ تر سائڈس کے لیے استعمال ہوتا ہے جو آپ کے ادھر ہیں. تو یہ طرف جو ہے آپ کا ثنایا علیہ کے، یعنی ان 2 دانتوں کی جو گرین آپ کو ڈاٹس نظر آئے ان کے لسا سے، لسا مطلب مسوڑے، یا آپ اس کو انگلش میں گمز کہتے ہیں.
تو ان से जो है आपका नून अदा होगा। क्या कोई है जो इस चीज को दोबारा रिपीट करे? क्या नून तरफुल लिसान, जुबान की नोक ऊपर वाले 2 दांतों के मिश्रण से लगती है तो नून अदा होता है। ओके, वेरी गुड। ठीक है, ये डेफिनेशन कब से याद है? लेकिन जबान की नोक के साथ साथ तरफुल लिसान भी कुछ लगेगा। तरफुल लिसान यही है, यानी इससे ज्यादा आप, यानी हाफा नहीं है, आप इसको थोड़ा सा यूं कह सकती हैं कि तरफुल लिसान का मतलब ये है कि बिल्कुल हाफा नहीं, क्योंकि अगर हाफा ही सिर्फ लग रही होती, यानी सिर्फ इतना सा ये पर्पल पर्पल पोर्शन जितना हम हाफा, इसको हाफा कह रहे हैं, अगर यही लग रही होती तो फिर इसके लिए भी हाफा का लफ्ज इस्तेमाल हो सकता था, लेकिन लफ्ज इस्तेमाल हुआ है तरफुल लिसान। इसका मतलब है कि तरफुल लिसान इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हाफा से आगे बढ़ चुका है, लेकिन बस थोड़ा सा। नून में हम ये नहीं कहेंगे कि आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे, ये भी तरफुल लिसान है ना, यहाँ तक नहीं। बस आपका क्या है कि हाफा से, हाफा इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि ये हाफा से थोड़ा सा बड़ा का एरिया है, लेकिन पीछे क्या कहा गया, यानी लगाना कहाँ पे है इस तरफुल लिसान को? इन 2 दांतों के मसूड़ों पे, सनाया उलिया के लिसा से। अच्छा, मेरा सवाल है कि जो पिक्चर के अकॉर्डिंग हमें नजर आ रहा है मुंतल लिसान और रासुल लिसान, मुंतल हाफा और रासुल लिसान और तरफुल लिसान, तीनों एक ही पॉइंट को कह रहे हैं। तरफुल लिसान जो है वो इतना पूरा जो मैंने ग्रीन एरिया किया, यानी अगर मैं इसको भी थोड़ा सा मजीद आपको ग्रीन करके दिखा दूं कि ये पूरा हिस्सा समझ लें, ये तरफुल लिसान का हिस्सा, तो यानी इसको जबान की नोक कहा जाता है। ये जो आपको सेमी सर्कल सा या डी सा आपको नजर आ रहा है, तरफुल लिसान इसके लिए इस्तेमाल होता है। अगर आप मजीद और भी किताबों को देखें तो आपको नजर आएगा कि तरफुल लिसान से निकलने वाले 12 लेटर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ये पूरा तरफुल लिसान हर लेटर के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि तरफुल लिसान के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो कि इस्तेमाल हो रहे हैं। तो नून में जो है हम तरफुल लिसान की सिर्फ आगे के यानी जो टिप है उसको हम सनाया उलिया के लिसा से टच करेंगे। बिल्कुल, जबरदस्त, वेरी गुड, यही मतलब है इसका। ठीक है, और इसका ये मतलब यानी इस वक्त हम जो पढ़ रहे हैं इसका एक मकसद ये है, क्योंकि हम नून के बारे में मजीद नहीं बात पढ़ेंगे यहाँ पे, कि जब हम नून से लाम की तरफ मुंतकिल होंगे, यानी जब हमने नून के बाद लाम अदा करनी है, कोई लेटर है जैसे इन्नल्लज़ीना, तो हम जब पढ़ते हैं तो पढ़ने में क्या ख्याल रखना है, नून के बाद हम लाम अदा करें, यानी इस नून से हमने अपनी जबान को इधर इधर फैला लेना है, स्प्रेड कर लेना है, खोल लेना है, जबान को सीधा स्ट्रेट कर लेना है। जैसे इस वक्त आप देख रही हैं कि नून का मखरज येलो येलो सा पोर्शन है, आपने जबान उठाई इस येलो पोर्शन पे लगाई तो बिल्कुल छोटी सी जगह होगी ना। अब कोशिश करके देखें, इतना येलो येलो कोशिश करें, इन बोले, इन। और जब इसको लाम तक मुंतकिल करेंगे तो कैसी आवाज आएगी, नौ अगर हमने लाम की अदायगी के लिए भी यही 2 दांत की लिसा को इस्तेमाल किया तो आवाज यकीनन तौर पे ऐसी आएगी, नल, क्योंकि आप बहुत नोक इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत जबान का बहुत पॉइंटर यानी पॉइंट से हिस्से को इस्तेमाल करें। अगर आप अपनी जबान को पूरा अदना हाफा को खोल लें स्ट्रेट, तो फिर जो आपकी आवाज निकलेगी वो क्या होगी, इन्नल। एक्सीलेंट, क्योंकि लाम की अदायगी में अभी तक जो आवाज आ रही है वो इस तरह की है कि आप लोग इस जबान और तालु के दरमियान गैप छोड़ देते हैं, यानी आपकी सांस जो है इसी पोर्शन से निकलती रहती है, जिसकी वजह से आवाज आती है इन्नो नो नो। ये नहीं आनी चाहिए, इस पे आपने जबान को अच्छी तरीके से फिक्स करना है, नल बोले, मिनल मिनल
वेरी गुड। नल और इसी तरीके से हमारे पास इन के बाद लफ्ज अल्लाह भी आता है, तब हमने नून के बाद लाम की अदायगी करते हुए लाम को मोटा पढ़ना होता है। अब हमने क्या करना है, ये जो आपको वस्तुल लिसान नजर आ रही है, इसको हमने थोड़ा सा क्या करना है, इसमें थोड़ी सी कैविटी बनानी है, इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ पुश करना है। यानी इस पोर्शन में, अब जो मैं इस आपके जो ऊपर का पैलेट है उसमें आप देखें, ये जो आपका हार्ड पैलेट होता है, इसके अंदर आपने जो है जगह बनानी है। आपकी आवाज की डायरेक्शन इस पैलेट की तरफ होनी चाहिए जब आप मोटा लाम अदा करना चाहते हैं, यानी आपकी आवाज होठों से बाहर नहीं आनी चाहिए। आप कोशिश क्या करेंगे कि आप जबान के दरमियान में एक घड़ा सा बना लें, एक कप सा बना लें, और उसके अंदर क्या करें, आवाज को रोकें। आवाज को कहाँ रोकेंगे, इस पोर्शन में। इस पोर्शन में जब आप आवाज को रोकेंगे तो आवाज की डायरेक्शन ऐसी होगी, ऊपर की तरफ, रूफ की तरफ। इन, पहले इन बोला, यानी इन बोलने का मतलब क्या है कि पहले आपने इतनी दांतों पे लगाया, फिर आप 8 दांतों पे गए, और यहाँ दांतों पे आने के बाद आपने इस एरिया में आवाज को रोका बगैर होठों को गोल किए। इन नऊ, इन नऊ बोलिए। जब ऐसे आवाज, पहली आवाज आपकी लाम की सही हो गई, नऊ नऊ नऊ। अब जो आवाज आपने इसके दरमियान रोकी थी, उसको रोकते हुए जुबान को बहुत थोड़ा सा नीचे करेंगे, होठों को बहुत ज्यादा मूव नहीं करेंगे, या लोअर जॉ को बहुत ज्यादा नीचे नहीं करेंगे, बल्कि आप यूं समझ लें कि आपने हिलाना ही नहीं है होठ और लोअर जॉ को। सारी कोशिश आपकी क्या होगी कि आपने ये जो जबान आपने यहाँ पे क्या की हुई थी, नीचे की हुई थी, आपने इसको ऐसे बनाया हुआ था, ऐसे ही है ना, ये अंदाज होगा आपकी जबान का ना। इधर आपकी लिस्सा से लगी हुई है लाम के लिए जबान, और ऊपर से आपकी यहाँ से उठी हुई है, ठीक है। तो ये जो बीच में आपने ये कॉन्केविटी बनाई हुई है, जो कब बनाया है, उसका ख्याल करते हुए आपने बड़े ही आहिस्तगी से, आराम से अपनी जबान को नीचे करना है, कि इसमें जितनी मेहनत से आपने आवाज को रोका था वो एकदम से बाहर ना निकल जाए। यानी नल व इन नल पढ़िए। पहली बहन थी, जो पहली बहन थी उनकी आवाज बिल्कुल क्लियर थी, यानी साफ, माशाल्लाह। जो पहली बहन ने पढ़ा था, साफ पता चला था कि नून कहाँ से निकला, लाम कहाँ से निकला, और लाम के लिए आवाज कैसे मोटी हुई। एक्सीलेंट जो भी पहला स्टूडेंट थी। इन नौ लॉ एक बार फिर से। अक्सरियत सही पढ़ रही है माशाल्लाह। और अगर इन्नल्लज़ीना पढ़ना होगा तो क्या करेंगे, इन्नल्लज़ीना। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकुम बारकल्लाह फीकुम बारकल्लाह फीकुम। ठीक है जी, आज के इस सबक की तरफ आते हैं हम। अब जब हमने तावुज़ और तस्निया पढ़ना है तो क्या ख्याल रखना है, लाम बारीक आएगी तावुज़ में या मोटी? बारीक बारीक बारीक। एक्सेलेंट।
ताउज़ और तस्मिया में सिर्फ ताउज़ में हमारे पास कितनी मरतबा मुंह गोल होता है? एक ही दफा होता है। जी वाव कोई मध्य और? आता है ना, 2 दफा होता और है। 2 दफा कब? होगा। राल और Excellent. हमजा वाव मध्य। कब कब होगा? आइन, वाव, पेश, ओ, एक मरतबा यहाँ पर और दूसरी और मरतबा जू पे जाल दाल की पेश दाल पे। की पेश अदा करते हुए। एक्सीलेंट। आइन, वाव, पेश पढ़ते हुए आपके होंठ ऐसे करके ऐसे होने चाहिए, यानी ये जो मूवमेंट है ना, ये ऐसे 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 ऐसे, जैसे स्ट्रॉ होता है, इस तरह आपने अपने होठों को आगे निकाल लेना है। यानी एक तरीके से जैसे चिड़िया होती है, उसकी चोंच होती है, तो चोंच उसके मुंह के साथ उस तरीके से तो नहीं लगी होती जैसे कि हमारे होठ होते हैं, बल्कि उसकी आगे बीक निकली हुई होती है। इसी तरीके से हमने अपने होठों को स्ट्रॉ या चोंच बना लेना है। फिर जाल की पेश के लिए फिर दोबारा अपना मुंह यानी होंठ गोल करना है। जब अच्छी तरीके से गोल कर लें फिर बा की अदायगी करें। जब गोल पूरे नहीं होते और हम फौरन बा पढ़ते हैं तो आवाज जुबिल्ला 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 हो जाती है। हमें जुबिल्ला नहीं चाहिए, आओ आओ नहीं चाहिए, आ ओ। ठीक है जी। ये मैं